Okay, good morning, everyone. Um, so we will be happy to discuss if there are any questions about the material to be from the last week, not from this week. We have uploaded the videos for this week, but right now is not the time to discuss those videos. We'll discuss those videos on Thursday. This morning we can discuss homework 2, the solutions to homework 2, the content which is to be covered in the second quiz, and any material that you may have confusions about. Are there any questions? Are you guys able to hear me? Yes, sir. And I also have a question. Sure. Please go ahead. Yeah, sir. Actually, it's sort of just like a confirmation. कि अब जिस तरह एक question था homework problems में, I think आपने class में भी थोड़ा सा discuss किया था, and then मैंने कल की भी देखी. So what you did was कि वो जिसमें minimum value नहीं रखनी थी stocks में, जैसे x1 is less than equal to 2, greater than equal to 2 and so on. So उसमें what you did was कि आपने y को रख दिया था x minus 1. So that like x की minimum value 1 है. So उस केस में I guess पर हमने खाली positive solutions देखने हैं, and की में ऐसे किया हुआ था कि y को रख दिया था x minus 2, जिससे x की like minimum value I guess 2 आ जाती है, वो 0 आ जाती है और उससे हमने नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस देखने हैं, बट आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा. Is that so? Well, that's true. Let's just take a look at the example. ये problem 14 को देख लेते हैं homework से, ठीक है? So problem 14 में जो है वो there are some restrictions on x1, x2, x3, and x4, and it's a good example, good problem to understand what is going on. ठीक है? So इसका अगर if you look at the solution, we have already uploaded the solutions. If you look at the solution, it says that आपके पास 20 units of money है, and you have to invest these 20 units of money in 4 different stocks: x1, x2, x3, and x4. And then अगर सिर्फ यही होता तो ये तो हमने क्लास नोट्स के अंदर भी सॉल्व किया हुआ है. But now they have given it some additional conditions, and the additional condition is that x1 should be greater than equal to 2, x2 should be greater than equal to 2, which means कि 2 units जो हैं वो x1 में invest करने हैं, 2 units x2 में करने हैं, x3 is greater than equal to 3, and x4 greater than equal to 4. ठीक है? Which means कि if you look at that equation, x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 20, normally we solve these equations for positive solutions or non-negative solutions. हमने उनके formulas भी derive कर लिए, ठीक है? लेकिन if you look at these conditions on x1 and x2, these are not really, we are not saying कि ये non-negative हैं या positive हैं. हम तो ये कह रहे हैं कि x1 2 से भी बड़ा होना चाहिए. x2 जो है वो, ठीक है ना? So this is neither, यहाँ पे वो चीज भी फिट नहीं आ रही कि नॉन नेगेटिव हो, यहाँ पे वो चीज भी फिट नहीं आ रही कि पॉजिटिव हो, बिकॉज although कि ये सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें 1 तो नहीं आ रहा कहीं पे. x1 जो है वो 1 नहीं हो सकता, वो 2 या उससे बड़ा होना चाहिए. So there is this additional restriction. So how do we handle this? To handle this, I will transform this x वाली equation into a y वाली equation, and then I will put the restrictions on y. So for example, in this problem, if you are looking at the solution, if you take y1 to be equal to x1 minus 2, what that gives you is that x1 was greater than or equal to 2. So this allows you to have y1 greater than or equal to 0.
Does that make so sense? my question here is, so जी, either we are going, since y1 is either greater than or equal to 0, so अब ये जी. जो नई equation बनेगी इसमें we are going to find the non-negative solutions, right? Here you will find the non-negative solutions. If you had Great. taken हाँ. y1 to be equal to, आप ऐसे भी solve कर सकती हैं कि you हम्म. could take y1 to be equal to x1 minus 1, या y2 एग्जैक्टली आपने क्लास में से किया था तो minus इसलिए I 1. was like कि हाँ ये भी कर सकते हैं, फिर हम पॉजिटिव सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. फिर पॉजिटिव सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. Okay, okay, okay. But like in any case, the like actual answer would be the same, like जो इनका आएगा, right? Of course, answer would be the same. Answer should be the same. ओके ओके ओके. एंड सर इसी तरह एक और क्वेश्चन है, आई थिंक क्विज में भी इस तरह का कुछ आया था जो मुझसे नहीं हुआ. इट्स लाइक आपने लाइक वी नो के नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एन ऑफ अ सेट इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट एंड एक्सक्लूडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट, उनके क्या मतलब फॉर्मूलाज भी हैं, यू नो लाइक n-1 r choose r-1 and so on. हाँ. बट लाइक अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें, जैसे इधर होमवर्क में भी एक था कि जिसमें हमने 1 2 3 4 5 लाइक टोटल 5 डिजिट्स में प्रॉब्लम 8, तो उधर हमने किस तरह करना है लाइक देखें, every situation is different. तो अगर आपने सबसेट्स फाइंड करनी है, सबसेट्स का तो बड़ा आसान सी चीज थी ना कि एवरी सबसेट ऑफ अ सेट, उसके अंदर जो है वो जो मेन सेट है उसका कोई एलिमेंट या होगा या नहीं होगा. या सो एग्जैक्टली. टू पॉसिबिलिटी फॉर एवरी एलिमेंट of the main set to be present or absent in the subset. ठीक है. तो अब हर एलिमेंट के लिए टू पॉसिबिलिटीज हैं. सो पहले के लिए टू पॉसिबिलिटीज एब्सेंट और प्रेजेंट, दूसरे के लिए टू पॉसिबिलिटीज एब्सेंट और प्रेजेंट. सो ये 2 times 2 times 2 times 2 जितने भी एलिमेंट पावर है, अच्छा, लाइक राइट. हम कॉन्सेप्ट वही अप्लाई कर रहे हैं कि लाइक दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या वो होगा या नहीं होगा, बट जी नाउ वी जी आर थिंकिंग अबाउट मोर देन वन एलिमेंट्स लाइक. जी जी जी. Okay, okay. But this is a very simple case of finding the subsets. How many subsets do you have? फिर मेरा ख्याल है हमने कहा था कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे. तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स वो एक ही एम्प्टी सेट होता है, जो सबसेट होता है वो एक ही होता है. तो उस एक को माइनस कर दें, उस एक को माइनस कर दें, बस आंसर आ जाएगा. ये दैट वाज आई थिंक इन क्विज 1. ठीक है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम 8 को अगर आप देखें तो प्रॉब्लम 8 में हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ साइज 4 ऑफ द सेट S. अच्छा, कितने सेट हैं साइज 4 के? तो ये आपके पास 1 से लेके 20 एलिमेंट, तो 20 चूज 4, ये इतने सेट उससे हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अगर कोई ये पूछता है कि बताएं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आप पहले ये करेंगे 20 चूज 0 plus 20 choose 1 plus 20 choose plus all the way up to plus 20 choose 20. That will give you exactly the same thing as 2 to the power 2 या ठीक है. अब इससे जो अगला स्टेप है ना 15C4 वाला, देयर आई लॉस्ट इट, के क्या हुआ है लाइक मुझे यहाँ पे नहीं समझ आई कि कौन सा वाला 15C4 वाला. उसमें इसने पूछा है कि that contains at least, given problem में contains at least one of the elements 1 2 3 4 5. ठीक है. अब 20 में से एटलीस्ट वो होना चाहिए. तो पहले हम ऐसा करते हैं कि ऐसे नंबर ऑफ सेट्स निकालते हैं जिसमें इनमें से कोई भी नहीं है. तो इन 5 को उठा के बाहर रख दें, बाकी कितने आपके पास 15 रह जाएंगे. यानी टोटल ही कम हो गया. हाँ, तो 15 choose 4 जो है that is the number of elements which will not have 1 2 3 4 5. उनमें से कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. ठीक है. लेकिन टोटल हमारे पास थे 20 चूज 4. तो 20 चूज 4 में से ये 15 चूज 4 माइनस करेंगे तो आपके पास वो वाले सेट आ जाएंगे जिनमें से 1 2 3 4 5 में से एटलीस्ट एक जरूर मौजूद होगा. हाँ, और लाइक इनमें वो भी आ जाएंगे जिनमें इनमें से कोई दो भी प्रेजेंट है, या उससे भी वो है. हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है. एक भी हो सकता है. लेकिन हमें ये पता है कि हमने वो सारे निकाल दिए हैं जिनमें इनमें से कोई भी नहीं था. ठीक है. ओके. मेक सेंस? Yes, it does. Also, इसके नीचे एक दूसरा तरीका भी लिखा है, वो क्या 5CI 15C4 minus I. हाँ, सो वो तरीका ये लिखा हुआ है कि we can all इसको alternately find कैसे सॉल्व करने का तरीका है कि we can find the number of subsets that contain exactly I of the first 5 elements.
तो ये 5 चूज I, तो मतलब पहले 5 में से ये I आ जाएंगे और बाकी जो 15 बच गए हैं उनमें से 4 माइनस I आ जाएंगे, क्योंकि आपने 4 ही चूज करने हैं ना। ठीक है, so this is the 5 choose I multiplied by 15 choose 4 minus I. This is the number of ways you can select I of the first 5 elements. ठीक है, okay, okay. and then you can I जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 हो सकता है। और 5 क्यों नहीं? 5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टोटल एलिमेंट्स ही 4 चूज कर रहे हैं ना। ठीक है, सबसेट ऑफ साइज 4 हमने चूज करने हैं। हाँ साइज 4, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है ना, ओके। तो यानी उसमें पांचों तो हमने, हमारे पास जो सबसेट है उसमें पहले 5 में से 4 ही आ सकते हैं, 4 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते ना। हाँ ट्रू, मैं एक्चुअली उसके साथ कंफ्यूज कर रही थी, वो 1 2 3 4 5 के साथ में, लेकिन वो तो दूसरा वाला है। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन हो होमवर्क के बारे में? हाँ सर, मुझे बस ये क्लैरिफिकेशन चाहिए थी प्रॉब्लम 14 में कि हम माइनस बेसिकली जो कर रहे हैं वो मिनिमल इन्वेस्टमेंट उसने बोला है इसलिए कर रहे हैं ना। अगर वो मैक्सिमल बोलता फॉर एग्जांपल तो फिर हम ऐड करते बिकॉज हमें एट द लीस्ट B2 चाहिए वैल्यू। प्रॉब्लम 14 में वही वाली जो इन्वेस्टमेंट्स वाली है 20,000 जो इन्वेस्ट करने हैं फॉर पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज में। जी 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 जी, तो नहीं अगर ये फॉर एग्जांपल मैक्सिमल इन्वेस्टमेंट बोलता हमें तो हम ऐड करते हैं सारी जो +2 और ये सारी जो ऑप्शंस है। नहीं नहीं, वो फिर वो ऐसे नहीं सॉल्व हो सकेगा। मैक्सिमम अगर आप उस पे लिमिट लगाएंगे ना तो दैट वुड नॉट बी, इस तरह डायरेक्टली नहीं सॉल्व हो सकता। तो उसके सर लिए मिनिमम में और मतलब सोचना माइनस हम जो कर रहे हैं तो दैट बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 1 होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा तो वो काउंट नहीं होगा। तो एवरी सिंगल टाइम हम उसमें से एक और दफा क्लेरिफाई कर देंगे हम माइनस क्यों कर रहे हैं सब में से। ये y1 जो है x1 माइनस 2 क्यों कर हाँ, रहे ये सारे हैं? माइनस क्यों किए इसलिए हैं? कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो x वाली इक्वेशन लिखी है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 20, इस टाइप की जो इक्वेशन है, इसके या तो हम नेगेटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं या पॉजिटिव, सॉरी या नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव या पॉजिटिव निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है वो x1 ग्रेटर देन 2, x3 ग्रेटर देन 3 इस तरह की है, जो पॉजिटिव तो है लेकिन उसमें दे आर नॉट ऑल पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से x1 को मैं 1 कर ही नहीं सकता। अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 20 इसके मैं पॉजिटिव सोल्यूशन निकालता हूं, उसमें वो सोल्यूशन भी आ जाएगा जिसमें x1 1 होता है, जिसमें x2 भी 1 होता है, वो वाले सॉल्यूशंस भी काउंट हो जाएंगे। लेकिन आई हैव टू मेक श्योर कि वो सॉल्यूशंस काउंट ना हो। क्यों? क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्शन जो दे दी है कि x1 जो है वो 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करता हूं, मैं एक y सिलेक्ट करता हूं कि y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2। इसका मतलब है कि अब मैंने y1 के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि y1 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए y1 -2 करने से 0 या x1 उससे बड़ा कैसे होगा? जी, x1 के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि it has to be greater than equal to 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर मैं कहूं कि x1 में से अगर मैं 1 माइनस करूं, उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? ग्रेटर देन x1 में इक्वल टू से 1 माइनस greater than equal to 1। और x1 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। And when you say that something is greater than equal to 0, that means it's a non-negative thing, right? यूं आप देख लें कि ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को अगर आप लेफ्ट पे ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा x1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यू डिसाइड के ये you define y1 to be equal to x1 minus 2, so that means कि y1 will be greater than equal to 0। so अब आपके पास जो इक्वेशन आएगी ना, अब जो y की शक्ल में जो इक्वेशन आएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, नॉन नेगेटिव बोलेंगे इसमें आपने नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो वो जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था, जो किसी और ने सवाल पूछा कि you could also solve this by taking y1 is equal to x1 minus 1, y2 is equal to x2 minus 1, y3 is equal to x3 minus 2 and y4 is equal to x4 minus 3,
फिर जो इक्वेशन आएगी उसके आपको पॉजिटिव सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे, क्योंकि नाउ यू हैव greater than equal to 1. जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सही, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक, थैंक यू एग्जैक्टली, सर. ठीक है, और दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए. एनी अदर क्वेश्चन, कोई और होमवर्क के बारे में या कोर्स मटेरियल के बारे में? जी इर्तजा एंड देन निदा. Yeah, hello, am I audible? Yes. Okay, so I was wondering if I could ask one question from the first quiz we had. I sort of figured out most of my mistakes except for one question. So if you could possibly explain that, that'd be great. Sure. Why not? Okay, so this was the rugby player wala question, part D, in which you asked that what is the total number of orderings possible if no two British people were standing next to each other. So in my head, the logic was that, okay, if you pair two random British people up, because you have a pool of 3, then it's just 3 choose 2, and then you just might subtract it from 9 factorial. In the sense के 8 factorial times 3 choose 2 times 2, इसको माइनस करेंगे हम 9 फैक्टोरियल से, तो इससे हमें मिलेगा, बट द आंसर इज अपेरेंटली रॉन्ग, सो आई एम नॉट श्योर कि किस तरह करना था. सो अभी मेरे पास सामने है नहीं खुला हुआ. उसमें रग्बी प्लेयर्स आपको दिए थे अमेरिकन, ब्रिटन, यू हैड 3 अमेरिकन्स, 3 ब्रिटिश पीपल एंड 3 कैनेडियंस. जी. सो इसमें हाँ मैंने अब ये खोल लिया है, इसमें 4 पार्ट्स थे. यस जी. सो द फर्स्ट पार्ट वाज कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डरिंग पॉसिबल, वो तो ऑब्वियसली दैट्स 9 फैक्टोरियल. यस ऑब्वियसली that would be 9 factorial. ठीक है. And everyone, by the way, everyone got different data. आपके पास 9 आ गया था, किसी के पास 7 आएगा, किसी के पास 12 आएगा. तो जो बस जनरल थॉट प्रोसेस है फॉर हाउ आई वाज सपोज्ड टू अप्रोच दिस, वो बस मुझे समझ नहीं आ रहा. जी. सो इसमें कौन से वाले में इशू था कि if no two Britons या if two specific Britons are not to stand The next. last part, if no two Britons were to stand next to each other. सो इसमें एक ऐसे कर सकते हैं कि if no two Britons are to stand next to each other, इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि of course there are multiple ways of solving it, कि आप वो वाली ऑर्डरिंग्स निकाल लें जिसमें 2 Britons जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे. ठीक है. This is the same as solving that bad antenna problem, जिसमें क्या हम कहते थे कि 2 bad antennas इकट्ठे हो जाएंगे. See? Yeah, no, but the problem, वो मेरी भी यही logic थी, but the confusion here is that you have 3 British people. That's okay. वहाँ पे antennas भी आपके पास जो है वो M bad antennas हो सकते थे, and we wanted no 2 bad antennas to be together. You see? So you had M antennas which could be 5, 6, 7 जितने भी हो सकते हैं. यहाँ पे आपके पास 3 हैं, and you want no 2 bad antennas to be together. How many orderings are possible? ठीक है. So जिस तरह से हमने वो वाला सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरह से, एग्जैक्टली उसी तरह से ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं. एंड देन इसमें कोई और नया तरीका, आई एम श्योर के काउंटिंग के जो है ना वो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज, बट वन इमीडिएट वे ऑफ डूइंग इट इज के जिस तरह से वो एंटेना वाले प्रॉब्लम के अंदर हमने कहा था कि उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह से बिल्कुल इसमें सॉल्व कर लेंगे. एग्जैक्टली वही सेम उसी तरह से फॉर्मूला भी वही लग जाएगा इनफैक्ट. ओके, या, दैट मेक्स सेंस. जी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. ऑलराइट. एंड बाय द वे, इफ यू वांट टू डिस्कस कि आपने कैसे किया था एंड व्हाई इट डिड नॉट गिव यू द करेक्ट आंसर, वो किसी और टाइम पे पूछ लें. अभी can I possibly ask you in your office hours or something? हाँ, ऑफिस आवर्स या ईमेल करें या पियाजा पे पोस्ट करें, वहां पे भी लोग जवाब दे देते हैं, या ऑफिस आवर्स में पूछ लें. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. Okay, perfect. Thank you so much. Sure, no problem. Nida? Sir, I have a question. Like it's related to
you know, when we find like non-negative like solutions of like a given equation. Can I send it in the chat or should I just like read it out? Is this from the class notes? No. हाँ Okay, should I send it in the chat? हाँ chat में भेज दें. Sure, sure. Okay. Did it send? Okay, let me just open it. Like here, I didn't understand the how to do the part where they're giving like restrictions on multiple of the variables. How many solutions are there to the ये हमारी book से question है? No, it's from somewhere else. So so I don't know. So you are given this expression x1 plus x2 etc. To be equal to 21. ये करना है. How many solutions are there? And I is equal to is a non-negative integer such that x1 greater than equal to 1. Part A जो है इसका. So x1 you want x1 to be positive. So you will replace x1 with y1 or x1 prime, whatever you like. So you will say k x1 minus x1 minus 1 is greater than equal to 0, right? Part A के अंदर x1 minus 1 greater than equal to like the B part. I don't B understand the part. Yeah, the last one. The zero x1 is between 0 and 3 and then x2 is between 1 and 4. हाँ, so मुझे पता नहीं है. पहले भी किसी ने पूछा कि अगर मैक्स दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे. वो विल नीड टू थिंक अबाउट. ये जिस किताब से आया है शायद उसमें कोई उन्होंने डिराइव किया होगा इसका मेथड. Yeah, so so we can probably derive some method for this. I mean, maybe not in the next 2-3 minutes. जो जब भी quiz start होने लगा है. Oh, okay. Yeah. I think what can be done here is जो ये restrictions इन पे लगाई हुई हैं कि x1 के ऊपर for each value of x1 and for each value of x2 फिर total में से वो minus कर देंगे. We can probably solve it, you know, brute force. But there may be a more systematic way जिसको derive किया जा सकता है. ठीक है. ठीक है. जी. किसी और का कोई और सवाल? Any other question? सर मेरा भी एक पिछले क्विज से ये एक सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा था. जी आसिम. अगर वो पूछ लूं तो मसला तो नहीं? श्योर पूछ लो. सर वो सेट्स और सबसेट्स वाला जो सवाल था ना, उसका पार्ट ई समझ नहीं आ रहा कि इफ वी डिसलाइक 3 स्पेसिफिक एलिमेंट्स तो तब कितने सबसेट्स बनेंगे जिसमें कोई वो 3 स्पेसिफिक एलिमेंट्स नहीं होंगे. तो आपके पास टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनमें से वो 3 निकाल के बाहर फेंक दें. ठीक है. बाकी कितने बच गए आपके पास? n-3. और n-3 जो रह गए हैं उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 2 to the power n-3. ओ ठीक है. शुक्रिया सर. शुक्रिया. Sure. No problem. So for all these questions, I think it's just a matter of recognizing कि कैसे ये solve करते हैं. बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि ये बड़ा मुश्किल सा होगा, लेकिन you know if we think about it,
तो कोई आसान चीज निकल आती है, आसान रास्ता निकल आता है उसमें से। एंड अगेन देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग ईच ऑफ दीज। ये काउंटिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एक तरीका नहीं होगा, मल्टीपल वेज ऑफ काउंटिंग आप कर सकते हैं। Okay, so for the quiz that we have, as we had announced earlier, you will have 30 minutes. 30-minute window hogi within the 35 minutes. 8:30 से 9:05 tak the quiz will be available, and you will get 30 minutes to solve this quiz. There will be no upload, कि कोई उसके अंदर जो है वो opportunity नहीं होगी, but you know, at 9:05 there will be another quiz, quiz 2 upload hoga. It will appear and you should be able to upload your work with that, and you will have a few minutes, you know, 6-7 minute aapko mil jayenge usme. 9:15 tak you should be able to upload, but not exceeding the 6-7 minute window that we will give you. उस विंडो के अंदर आपने जो है वो अपलोड करना है। And the upload is typically for some partial credit, लेकिन partial credit ये है कि math error वगैरह कुछ इस तरह की conceptual errors के लिए तो we don't credit, only credit for the math errors. Students ask question कि ये देखेंगे तो मैं counting तो सही कर रहा था लेकिन ये बीच में गलत हो गया तो गलत हो गया तो you know counting सही नहीं हो रही थी. These are you know very इन सवालों में और कुछ था नहीं. As we move forward, we may have, you know, some more question more जिसमें partial credit ज़्यादा easily दिया जा सकता हो. ठीक है, so the quiz is starting in a minute, और good luck with the quiz. फिर इसकी you know after some manual grading we will try to make the grades available within this week or end of this week. ठीक है. So I will close the session now. If you guys want to stay, I don't see if there is any reason to stay, but you know, just focus on the quiz. So I'll see you on Thursday.